Okay, today we'll repeat that naming part of that complex compound, and after then we'll continue the remaining part. So in this video we'll discuss that one only. So first of all, as what we have discussed, the general name only we'll discuss here, and in your book it was given separately, and that you can refer yourself, but we'll discuss the general rule, and this part is very important and for your final exam part also, as we may ask about this give the name of the given complex or write the formula for the following coordination compounds, like that we can ask. But this part is not in your term exam, which come on date 10 onwards. This is not there, as I have already told that in your D block, F block contain most of the questions, and along with that you have your surface chemistry and then your chemical kinetics. This fourth chapter is there. So we'll see it. First one, name of the compound is written in two parts, as even in our salt also what we have one cation and one anion. Like this one, in a complex compound also we have two parts, one is cation and another is anions. So when we have done this nomenclature for the common salt, suppose NaCl, what do we say? Sodium chloride. That means cation say first, after then anion will comes. Isn't it? Here also the same process will follow. The cation is named first in both positively or negatively charged coordination complex. That means the complex may be in the positive part or maybe in the negative part. But we always say the cation in the first. Then the others ligands, say suppose in a complex we may have say your ammonia, water, chlorine within the complex part. After then outside part chlorine we can say even in your exercise 9.2 of your textbook, it is 243 pages. On that, first is tetraamine aqua chlorido cobalt 3 chlorides. So here we have amino is there, we have aqua is there, we have chloride is there within the along with the cobalt in the bracket. After then outside we have chlorides. So like this dissimilar ligands may be there, and all the dissimilar ligands are named in alphabetical order before the name of the central metal atoms or ions. That is why we have written tetraamino aqua chlorido cobalt. Cobalt is the central metal atom here. तो कोबाल्ट का पहला हम लोग क्या क्या लिखते हैं? एक एमिनो ग्रुप है, एक एक्वा ग्रुप में एक्वा मीन्स वाटर है, एक क्लोरीन है. तो जितना भी लिगांस लोग है हम लोग पहला सेंट्रल मेटल एटम का आगे लिखेगा. दिस इज ऑन रूल नंबर 3. ऑन रूल नंबर 4, फॉर मोर देन वन सिमिलर लिगांस, अगर सेम लिगान है, सपोज अभी हम लोग जो डिस्कस किया वाला में क्या है, Na जो है दैट मीन्स NH3 जो है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मीन्स मोर देन हो गया. इन दिस केस फॉर मोर देन वन सिमिलर लिगांस द प्रीफिक्स डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, 4 मीन्स टेट्रा आर एडेड बिफोर द नेम. तो इसीलिए हम लोग टेट्राएमीन बोलते हैं. NH3 3 टाइम्स से बोल के इसका नाम दिया टेट्राएमीन्स. लाइक दिस वन नंबर न्यूमेरिकल prefix will be used. If di and tri is already appears, suppose ethylene diamine or EDTA, on that di is there. So in this case, अगर डाई और ट्राई जो पहला आने से और फिर उसका आगे में क्या डालेगा बोला, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जो है 20, 30, 20 मीन्स 2,
30 मीन्स इदित ये 2 टाइम्स हो गया तो 20 बोल के डालेगा पहला, डाई इथाइलिन एमीन बोल के 20 मीन्स 2, तो डाई इथाइलिन एमीन जो है 2 टाइम्स है बोल के ऐसा करके. तो इफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आर मोर देन 2 then you need to use the another term, that is what 20 means for 2, 30 means for 3, tetrakis, pentakis, like this one. Okay, so this is for the rule number 4. If the complex part is an anion, अगर anion की तरफ आ गया complex part जो है, तो आपका suppose we have potassium trioxalato illuminate, तो अभी trioxalato illuminate of नंबर सी का जो है एग्जाम्पल 9.2 का नंबर सी, तो उसका पोटासियम ट्राइऑक्सालेटो जो है क्या है अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो ट्राइऑक्सालेटो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, तो अभी ये नेगेटिव पार्ट हो गया. पोटासियम जो क्या है कॉम्प्लेक्स का बाहर में है, ये क्या है पॉजिटिव पार्ट हो गया. कैटायन इज पोटासियम और ट्राइऑक्सालेटो इल्यूमिनेट 3 इज व्हाट एनायनिक पार्ट. सो इन दिस if it is of anionic part, then the name of the central metal ended with the suffix ate. तो एल्यूमिनियम के बदले हम लोग क्या डालते हैं एल्यूमिनेट बोल के डालेंगे. ठीक है, अगर माइनस पार्ट होने से कॉम्प्लेक्स पार्ट जो माइनस पार्ट होने से सेंट्रल मेटल एटॉम का एंडिंग में क्या डालेगा बोला ATE, एट बोल के डालेगा. सो दिस इज व्हाट अबाउट द नेगेटिव पार्ट. आफ्टर देन the name of the anionic ligands end with O, suppose chloride, तो ब्रोमाइड ये हो गया, तो ये स्वर के हम लोग क्या आ गया अगर O ने खत्म होना है बोल के बोला. एनायनिक लिगांड का नाम जो क्या है क्लोराइड के बदले क्लोरिडो, क्लियर. ब्रोमाइड का बदले ब्रोमिडो, आयोडीन के बदले आयोडो. ओके क्लियर, तो ऐसा करके आएगा बोल के बोला. इफ एनायनिक लिगांड होने से मीन्स नेगेटिव चार्ज लिगांड होने से नाम के एंडिंग में ओ रहेगा बोल के. द नेम ऑफ द पॉजिटिव लिगांड होने से, अगर पॉजिटिव लिगांड है तो क्या डालेगा बोला अभी ईएम बोल के डालेगा. क्लियर, अगर पॉजिटिव लिगांड होने से ईएम, नेगेटिव लिगांड होने से ओ, ये नाम के एंडिंग में रहना है. बट इफ इट इज ऑफ न्यूट्रल लिगांड द सेम होगा. ओके, बट there are some neutral ligands whose names are different. Okay, out of that water means what aqua, and NH3 means amine, CO means carbonyl, NO means nitrosyl. Clear, only these 4 types they will give different names. Okay, others are same as what was there in the neutral ligands. Okay, so like this one we have for the ligand name. After writing all this, then what we have oxidation number of the metal you need to calculate by using class 11 method. Okay, class 11 में ऑक्सीडेशन नंबर कैसा निकालता है वो मेथड अप्लाई करके हम लोग क्या करेगा बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल निकालेगा. ओके, देन इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन व्हाट कैटायन और इन एनायन और इन न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय व्हाट रोमन नंबर इन पेरेंथेसिस, मीन्स दैट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में वो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेगा. तो दैट इज वाई आपका एग्जांपल 9.2 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होना चाहिए इन केस ऑफ नंबर सी. ओके, सो रोमन नंबर 3 इंडिकेट्स दैट इट इज ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर. आफ्टर देन नेक्स्ट रूल इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन इन वन वर्ड. ओके, दैट मीन्स देयर इज नो गैप. क्लियर, इसलिए ट्राइऑक्सालेटो इल्यूमिनेट 3 एक ही साथ लिखा है ना, तो ऐसा करके एक ही साथ लिखेगा उनके बोला. ओके, देन इन द लास्ट इफ द कैटायन आयंस if the complex ion is an cation, then the metal name is same as that of the elements. अगर मेटल एटम जो है कॉम्प्लेक्स का अंदर में रह गया तो सेम नाम लिखेगा. इसीलिए आपका रोमन नंबर 1 में हम लोग टेट्रा एमिनो मीन्स टेट्रा एमिन एक्वा क्लोरिडो कोबाल बोल के कोबाल का सेम नाम लिखा है ना. दिस इज बिकॉज कोबाल इज इन द पॉजिटिव पार्ट. ओके, so the neutral complex molecules is named similar to that of the complex cation. Okay,
these are the rules for naming the coordination compound. Okay, so if you know the rules, then automatically you can write the formula also. Here let us see some examples. Here CrNH3 3 times H2O 3 times. तो अभी क्या गया, एमिन, एक में क्या है एक्वा. तो एमिन और एक्वा किस में ये रहता है, ए है, एक में एम आता है, एम में क्यू आता है. तो एम कम्स फर्स्ट का लेटर बराबर हो गया, तो सेकेंड लेटर लिखिए. ओके, तो एम आने से, एम फर्स्ट होने से एम कितना है 3 है, इसीलिए इसका नाम जो है ट्राई एमिन आ गया. इसके बाद ट्राई एक्वा आना है. ओके, ट्राई एक्वा. आफ्टर देन आपका क्रोमियम आएगा, क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से 3 मिलेगा. इसके बाद क्लोराइड. सो द फुल नेम व्हिच इज रिटन इन द दिस part is wrong here. Instead of that, you need to write triamine, triaqua, chlorido, chromium 3 chloride. So that is the exact name of this complex. So like this one, we will give the name, complex name, and here let us see here. In number 3, here AgNH3 2 times, AgCN 2 times. Here 2 bracket is there, is ना. इधर देखो, इधर में क्या है, 2 ब्रैकेट है. इसका मतलब क्या है, this all together positive part and this part is negative part. Clear? Okay. So AgNH3 2 times is positive part and AgCN 2 is what, negative part. Clear? तो इधर में देखो पॉजिटिव पार्ट होने से हम लोग सेम नाम लिखो बोला, ठीक है ना. तो उसका फर्स्ट कंप्लेक्शन किसने पहला लिखो बोला, कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट बोला है कि नहीं. तो कैटायन क्या है, AgNH3 2 टाइम्स है तुम्हारा. तो क्या आ गया, डाई एमिन आ गया. NH3 मीन्स एमिन है, और इसके बाद सिल्वर है. क्लियर? सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर इधर में +1 रहेगा. ओके, क्योंकि होल यहाँ में प्लस चार्ज होगा, यहाँ में नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो +1 आ गया. नहीं तो ये मोलिक्यूल के लिए तो 0 है. 0 NH3 का 0 है. 0 × 2 + x, Ag का x है, इक्वल टू +1. सो Ag बिकम व्हाट, +1. ऑक्सीडेशन इसका जैसे ना. देन नेगेटिव पार्ट लिखेगा. अभी नेगेटिव पार्ट का क्या है, CN पहला लिखेगा. CN कितना है, 2 टाइम्स, तो डाइसाइनो आ गया. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, Ag मीन्स क्या है, सिल्वर है. सिल्वर का हम लोग क्या है, सिल्वरेट बोल के तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना. तो इसका अर्जेंटेट. ओके, तो किसने पहला A3 ने खत्म करो बोला था ना, नेगेटिव पार्ट होने से, तो इसीलिए अर्जेंटेट आ गया. अर्जेंटेट उसके बाद -1 कैरी करेगा बोला था ना. सो दिस इज व्हाट, -1, लाइक दिस वन. ओके, सो इन केस ऑफ नेक्स्ट लेट अस सी इट अगेन. K4 FeCN6. तो अभी क्या गया, K4 जो K तो प्लस चार्ज है, K+ बोल के लिखता था ना. तो क्या है, +4 है. तो इसका कितना होना चाहिए, FeCN6 का -4 होना चाहिए, है ना. तो अभी CN मीन्स -1 है, तो -1 × 6 क्या आ गया, -6 इक्वल टू -4 आ गया. तो -6 को उधर चला जाओ, कितना आ गया, 2 आ गया, है ना. तो अभी के पॉजिटिव पार्ट को पहला नाम दे दो बोला, तो क्या है, के मीन्स क्या है, पोटासियम. देन आपका ये लिगांस का नाम आएगा. लिगांस कितना है, 6 है, तो हेक्सा साइनाइड है. साइनाइड में से हम लोग नेगेटिव लिगांस होने से क्या करो बोला, ओ ने खत्म करो बोला, तो इसीलिए क्या गया, साइनो आ गया. ओके, देन आपका क्या गया, आयरन है, ठीक है ना. लेकिन नेगेटिव पार्ट में होने से क्या डाला बोला, AT डाला बोला, तो इसीलिए फेरेट. ओके, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2. क्लियर? सो लाइक दिस वन वी कैन गिव द नेम ऑफ द complexes, or by knowing the complex you need to write the formula of the complex. This is what we have. And after then we have discussed about the isomerism, so slightly we will revise it. After then we will go to the topic again. So structural isomers, simple way में structural isomers मीन्स क्या है बोला,
स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलता है बोला, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलता है बोला, ठीक है नहीं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मीन्स हम लोग किसका अंदर में आता है बोला, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का अंदर में हम लोग अलग अलग सा आइसोमर्स रहता है बोला है कि नहीं। फर्स्ट में क्या है, लिंकेज आइसोमर्स, जो लिंक में अंतर होता है। तो लेट अस सी इन द एग्जांपल्स, CONH3 5 times NO2 देन Cl, Cl इज द काउंटर आयन, ओके। तो इसके इधर में क्या है, एन के साथ ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो अभी नाम दे दो, NH3 कितना है, 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स मीन्स क्या है, पेंटा एमिन, ओके। तो फिर क्या है, नाइट्रो ग्रुप, नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव लिखाने से ओ ने खत्म करो बोला, नाइट्रीतो, ओके। ज्वाइनिंग किसके साथ है, एन के साथ है। देन आपका सेंट्रल मेटल है तो हम सेम बराबर लिखेगा बोला, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट में है ये। तो क्या आ गया, कोबाल, ओके। कोबाल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो यहाँ से, 3 मिलेगा, तो कोबाल 3 क्लोराइड, ओके। सो लाइक दिस वन। देन नाउ अभी ओ NO2 जो है क्या बोला, बाइडेंटेड लिगान है बोला, तो ओ के साथ भी लिंक कर सकता है बोला, तो ओ के साथ लिंक करा दो, क्या आ गया आपका नाइट्रीतो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड आएगा, ओके। सो लाइक दिस वन, हियर लिंकेज इज डिफरेंट इज ना, सो इट इज कॉल्ड एज ए लिंकेज आइसोमर्स। देन कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसा लिखेगा और लिंकेज आइसोमर कैसा लिखेगा बोलने से, लिंक में डिफर करा दो, लिंकेज आइसोमर लिख सकते हैं, ओके। भैया एक ये दे दिया, उधर से आपका ये लिखो बोलने से क्या है, लिंक में अंतर है ना, दूसरा सब बराबर है, समझा भैया। तो ऐसा करके अभी कोऑर्डिनेशन का आइसोमर्स लिखो बोलने से, कोऑर्डिनेशन मीन्स विद इन ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है उसको एक्सचेंज करो, क्लियर। तो अभी CrNH3 6 टाइम्स है ना, तो Cr कब किसके साथ ज्वाइन करा दो, Cn के साथ ज्वाइन करा दो, एक्सचेंज हो गया। तो क्या गया, CrCN6 लिखेगा, ठीक है नहीं। एक में क्या है, CO है, CO का साथ किसके साथ ज्वाइन कराएगा, NH3 6 टाइम्स। सो इन दिस टू व्हाट वी हैव डिफर, कोऑर्डिनेशन इज डिफर इज ना, कोऑर्डिनेशन मीन्स ज्वाइनिंग जो है उसको डिफरेंस है। तो ऐसा करके जो लिगांड्स आर इंटरचेंज, देन वी गॉट व्हाट, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, क्लियर। सो यू नीड टू एबल टू राइट दिस आइसोमर्स प्रॉपर्ली, समझ में ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन मीन्स जो काउंटर आयन जो है और अंदर में जो कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो दोनों अंतर होना है, ओके। तो अगर अंतर हो गया मतलब क्या मिलेगा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ओके। देन मीन्स ये वाला को अंदर में सब्स्टिट्यूट करो बोला, क्लियर। देन तो आइसोमर्स अराइज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयोनाइजेबल एनायंस, आयोनाइजेबल एनायन जो है क्या करो बोला, एक्सचेंज करो बोला, ओके। देन यू गेट व्हाट, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, समझ में ना, कैसे लिखिएगा समझ में आ गया। अभी अंदर से कोई ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट के साथ ज्वाइन करो, Br- बोलता है ना लॉ, तो नेगेटिव नेगेटिव इंटरचेंज करो, तो मिल गया खत्म, ठीक है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ में तो लिखने के लिए तो इजी है क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो पॉजिटिव है ये माइनस रहेगा ना, ये तो लिखने के लिए इजी हो जाता है। और ये सब में ना कैसे नाम से लिखे, वो जो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा पेटा है, तो नाम से ए टी डाल है कि नहीं, वो चेक करके फुटबॉल, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्वेटेड आइसोमर्स, ओके। सॉल्वेटेड मीन्स वाटर जो है अंदर का बाहर का डिफरेंस करो बोला है, ओके। देन वी गेट व्हाट, सॉल्वेटेड आइसोमर्स मिलेगा बोल, ओके, ठीक है। देन मीन्स वाटर इज टेकन एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होके लेना है वाटर को, ओके। सो हियर लेट अस सी CO is 6 times Cl3 is ना, तो इसका राइट डाउन ऑल द हाइड्रेटेड आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग बोल के ये फॉर्मूला सिर्फ देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, एक पानी अंदर डाल दो, मीन्स एक पानी बाहर लेके आओ, एक क्लोरीन अंदर घुसाओ, ओके। तो वाटर कितना गया, CO 5 times Cl2, ठीक है ना, और बाहर में फुल स्टॉप लगा के 1:2O, ओके। नेक्स्ट में फिर एक अंदर घुसाओ क्लोरीन, CO 4 times Cl2, then with bracket, then after then Cl 2 times of H2O, एक Cl और बाहर आ जाओ, मीन्स एक वाटर और बाहर आ जाओ,
COH2O 3 times Cl3 पूरा का पूरा घुस गया, इसके बाद 3 times ऑफ H2O. ओके, तो इसके बाद तो फिर दूसरा माइनस पार्ट है क्या, नहीं है, ठीक है ना. तो दिस इज व्हाट ऑल द सोल्वेटेड आइसोमर्स और क्या हाइड्रेटेड आइसोमर्स. नाउ यू कैन एबल टू राइट दिस ना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेरोआइसोमर्स. स्टेरोआइसोमर्स में हम लोग दो पार्ट है बोला, इसमें थोड़ा सा रिपीट करेगा. और लास्ट टाइम हम दो पॉइंट डिस्कस नहीं किया है. फेक मर्स बोल के एक होगा, ओके, और डेक्स्ट्रो और लिवो वो बोल के होगा, ठीक है. तो फेशियल आइसोमर्स कैसा लिखेगा और ये होगा, तो दैट विल डिस्कस हियर न्यूली, ओके, टुडे. तो नाउ विल सी इट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्री मीन्स क्या है, आपका मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री जो करता है क्या है, फिगर के बारे में, है कि नहीं. तो फिगर अगर अरेंजमेंट, फिगर मीन्स क्या है, अरेंजमेंट है कि नहीं. अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट जो है अंतर रखा गया, इसका मतलब क्या है, दिस सेम फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द constituent particles, then it is called as what, geometrical isomers. Okay, clear. So geometrical isomers are of two types. Okay, one is what, cis, another one is what, trans. Okay, so let us see what is cis, what is trans. अगर cis बोला गया तो हम लोग क्या बोलता है, सेम ग्रुप आर इन द सेम साइड. ओके, सो अभी PT NH3 2 times, Cl2 2 times, then third bracket. Okay, that means complex. Clear? So write down all the possible geometrical isomers of the following compounds and tell which one is more stable and why. Like these questions may arise for 2 marks. Clear? Okay. तो अभी हम लोग क्या करेगा उसके लिए, फर्स्ट में हम लोग के पास में क्या है, NH3 2 times है और Cl2 2 times है. मेटल कौन सा है, प्लाटिनम है, तो प्लाटिनम को मिडल में लिखेगा, ठीक है. तो चार है, चार हो तो क्या होगा, एक स्क्वायर के अंदर में रहेगा ना. चार में एक स्क्वायर का क्या कितना कॉर्नर है, हाँ बुर्बक, समझा बे. तो 4 कॉर्नर है, तो 4 कॉर्नर होने से क्या हो गया, हर कॉर्नर में हम लोग एक एक चीज डालेगा ना. तो एक क्लोरीन को दोनों साइड में बराबर रखो, NH3 को दोनों साइड में बराबर रखो. ओके, तो क्या आ गया, चीज मिल गया. ओके, तो अभी एक Cl, एक NH3, एक Cl, एक NH3 के अरेंज करो, तो अभी क्या आ गया, हाँ, क्योंकि Cl दूर हो गया ना. तो देन वन इज ट्रांस, वन इज सीज, वी नो इज ना. तो ट्रांस मीन्स क्या है, ऑपोजिट साइड में रखेगा. ओके, सेम ग्रुप आर इन द ऑपोजिट साइड, देन इट इज कॉल्ड एज ए ट्रांस आइसोमर्स. नाउ क्लियर. Now we'll see which one is more stable and why. Clear? So here always cis isomers are less stable than trans isomers. Clear? You can write it. Cis isomers are less stable than trans isomers. Due to torsional strain, less stable than trans isomer due to torsional strain. Torsional strain. Torsional strain means charge repulsion. Okay, अगर क्लोरीन बराबर नजदीक में हो गया तो क्या होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक हो जाएगा. ओके, तो रिपेल्स होना शुरू करेगा. रिपेल होने से क्या है, स्टेबिलिटी होगा नहीं. क्लियर. सो दिस इज व्हाई ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन व्हाट, cis isomers. ओके, सो दिस आइसोमरिज्म इन कॉमन इन कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6. तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है कहाँ में कॉमन होता है, बोला 4 एंड 6 कोऑर्डिनेशन आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरली एग्जिबिट होता है बोल के बोला. ओके, क्लियर. सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो हम लोग पूछ सकते हैं which isomer does not, which isomers having coordination number 4 does not shows
geometrical isomers. Okay, clear? So tetrahedral, those complex which have coordination number 4 having tetrahedral complex does not show geometrical isomers. Those complex with coordination number 4 having tetrahedral complex does not show geometrical isomers. Clear? Okay. Next is square planar complex. Square planar complex having the formula what? General formula क्या है? MX2L2. Okay. M is the metal, X2 and L2 are the ligands. Okay. कौन सा ligand होना चाहिए? Unidentate ligands. Clear? That means only one lone pair रहने वाला ligands का साथ. ठीक है? Then they will show one of square planar structures. Okay? So this square planar structure shows one of geometrical isomers. Okay? So here we have already know in this picture, Cs means chlorine are in the same side. Okay? One chlorine, another chlorine is in the different side, which we have already told now. Okay? Again, another square complex. That is what? Square planar complex with the type MABXL, where ABXL, that all are differ in their what? All this A, B है, B है, X है, L है, वो लोग सब क्या है बोला? Different ligands है. Okay? This also shows what? Cis and the trans isomers. Okay? Clear? So in this case, they will show exhibit what now? 2 cis and 1 trans. ठीक है? सारों का सारों अगर डिफरेंस हो गया तो कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा बोल के पूछ सकते हैं. ओके, सो complex having MABXL type, you can write it. Complex having MABXL type. Complex having MABXL type shows 2 cis and 1 trans isomers. 2 cis and 1 trans isomer. How many isomers, geometrical isomers can form by this type? MABXL type. Okay. Example, let us see here. PT is here, is no? And then what? NH3 is there. NH3 जो है A ले लो, Br जो है B ले लो, okay? Cl जो है X ले लो, फिनाइल PY means फिनाइल है, okay? तो फिनाइल जो है क्या है? L है, समझ में ना? ये जो है 2 cis आएगा और 1 ट्रांस आएगा, ओके? क्लियर? ये है लेकिन ये एग्जांपल तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ओके? तो ऊपर वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है. नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो आपका ये क्या होगा बोलते हैं. तो इधर देखो, octahedral complex of formula MX2L4, okay, in which 2X ligands may be oriented cis. X ligand जो है यहाँ में देखो cis में cis हो गया ना, क्योंकि L चारों तो बराबर ही है, ठीक है ना? तो जो कम है उसमें से आपका cis ट्रांस डिसाइड करेगा, ओके? क्लियर? समझ में ना? तो अभी x नजदीक होने से cis आ गया, x जो दूर होने से क्या हो गया? ट्रांस. क्लियर? समझ में ना? तो लाइक दिस वन. तो सपोज आपका CONH3
4 times Cl2 इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बोलने से CO शुड बी M के बदले CO हो जाएगा. ओके, L के बदले क्या होगा NH3 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 NH3. ओके, S के बदले क्या होगा Cl Cl. क्लियर? ओके, सो सच टाइप क्या आएगा बोला हम लोग Cl से डिसाइड होगा. ओके, Cl अगर नज़दीक में आ गया क्या है सीज है, Cl दूर हो गया ट्रांस है. ओके, सो लाइक दिस. Now see it again. Octahedral complex with formula Ma3X3. ओके, 6 है लेकिन एक में 3 बराबर ही लिगांस है, 3 लिगांस बराबर हो गया. ओके, इफ three donors atom of the same ligand occupy adjacent position at the corner of the octahedral faces, then it is called as क्या है बोला फेक बोल के बोला क्या बोले. ओके, ठीक है, तो FEC फेक बोल के. ओके, when the positions are around the meridian, then क्या बोलेगा बोला मर बोल के बोलेगा. ओके, तो अभी हम लोग उसको देखेगा अभी विद द एग्जाम्पल्स. ओके, ये देखो यहाँ में फेक में क्या है NH3 जो है CO का सेम साइड में रहेगा ना, ऑक्युपाइड करके आधा ऑक्युपाइड के मेरिडियन ऑक्युपाइड कर लिया ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेक बोलते. ओके, ठीक है. अगर NH3 के बीच में अभी क्या आ गया एक NO ने गैप रह गया है कि नहीं, समझा बे. अरे इधर देखो NH3 कंटिन्यूस होने से फेक, समझा बे. इधर देखो NH3 NO2 NH3 गैप आया ना, तो गैप आने से क्या बोलता है मर. समझ में आ गया बे फेक एंड मर का. ठीक है, आपका लिखेगा वहां से ऐसा लिखना पड़ेगा सेम लिगांस ऑक्युपाई एडजेसेंट पोजीशन. सेम लिगान ऑक्युपाई adjacent position at the corner of octahedral face. At the corner of octahedral face. Octahedral face. उसको R call as FAC. FAC. FAC means facial है. Clear? When position are around the meridian of the octahedron, then it is called MER. Okay.